Good morning to all the students of 10th class. Welcome to the class. So, we have already started our chapter which is related to world between the two world wars, right? हमने हमारी पिछली क्लास में वर्ल्ड वॉर 1 कम्प्लीटली पढ़ चुका है, राइट? यानी उसके कॉजेज़ भी पढ़े, उसके इफ़ेक्ट्स भी पढ़े। यानी वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद क्या वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद उसके क्या रिजल्ट्स थे, राइट? आपने पढ़ा ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बारे में, आपने पढ़ा लीग ऑफ नेशंस के बारे में। ओके, वर्ल्ड वॉर 1 started 1914, ended 1918. Okay, 1917 is very important because here Russia quit from the war. So today we are going to discuss about the Russian Revolution. बच्चों, लेसन पढ़ने से पहले कुछ फन हो जाए। Yes, now get ready to have fun. Okay, पोएम पढ़ोगे मेरे साथ? Yes. बच्चों, नर्सरी के टीचर याद है सबको? यस, यू ऑल लव योर नर्सरी टीचर, राइट? PP1 टीचर, PP2 टीचर, जिसने हाथ पकड़ कर आपको लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। ओके, आज उन्हीं के मेमोरी में एक पोएम पढ़ेंगे अपन। ओके, कौन सी पोएम पढ़ना पसंद करोगे? यस, पढ़ो बच्चों। ओल्ड मैकडॉनल्ड्स हैड अ फार्म, E-I-E-I-O. On his farm he had some ducks, with a quack quack here, with a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere quack quack, right? और पढ़ोगे? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. On his farm he had some cows, on his farm he had some cows, with a moo here, with a moo there, here a moo, there a moo, everywhere moo. Okay children, now be thankful to your teachers जो PP1 से लेकर अभी तक आपको पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चों, मैंने ये पोएम इसलिए गाई क्योंकि आपको मोल्ड करने के लिए, अपने सब्जेक्ट के तरफ इन्वॉल्व करने के लिए। ओके, सो चिल्ड्रन, बी रेस्पॉन्सिबल एंड स्टडी। ओके, आज का रशियन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। इट विल ऑलवेज कम इन 4 मार्क्स। इसमें से जो जो टॉपिक्स आएंगे आपको, दैट ऑल आर इम्पॉर्टेंट। बच्चों, आपको वर्क वॉट एवर पॉइंट्स आई एम राइटिंग हियर, दैट यू शुड राइट डाउन इन योर बुक, इन योर क्लास वर्क। ओके, सो अगर आप मटेरियल में सबमिट कर रहे हो तो वहाँ करेक्शन नहीं होएगा, अगर वो असाइनमेंट में है तो वहाँ करेक्शन होगा। मटेरियल में करेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर कमेंट आ रहा है आपको। Okay बच्चों, now get ready for the lesson. So today we are discussing about Russia. Russia was ruled by Tsar, that is emperor. क्या कहा जाता है? emperor in early 20th century. बच्चों, आज हम उसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रशिया एक बहुत वास्ट एरिया है जो दोनों कॉन्टिनेंट को कवर करता है। ओके, दैट इज़ यूरोप एंड एशिया, therefore it is called as यूरेशिया। ओके चिल्ड्रन, आप जानते हो रशिया is the 3rd most populous country in the world, okay, next to China and India. Okay, or the first and the foremost thing that you have to remember is it is an agricultural country. Russia is an agricultural country. 4 points याद हो गए? Russia was ruled by the emperor. It had very vast area covering 2 continents, Europe and Asia. It is the 3rd most populous country in the world. Its population is 156 million. Okay, now are you all understanding children? So children, ये रशिया के एम्परर है। क्या नाम है इनका? Tsar Nicholas II. He was the last emperor of Russia. Do you know children, he was killed by the Bolsheviks party that we are going to discuss in detail right now. Children, रशिया में हमेशा पेसेंट्स में और फ्यूडल लॉर्ड्स मालूम है ना, जैसा हमारे ज़मींदार होते हैं। ओके, और वहाँ के स्मॉल फार्मर्स में हमेशा लड़ाई होती थी। वाई? बिकॉज टू कंट्रोल ओवर लैंड। Okay, so here children,
you all know very well, in the previous 9th class you people have understood. So here Tsar Nicholas II ruled over this Russian large empire. He ruled with the help of army and the officers. Okay, now note down the points related to it. Children, here during the war, children, Russia lost the lives of 2 million soldiers and civilians. ऐसा कहा जाता है बच्चों, रशिया की आर्मी was the largest army in the world, but it lost almost the soldiers in the war. Okay, so Russia became the biggest loser of human lives in the world. नेक्स्ट चिल्ड्रेन, हियर शॉर्टेज ऑफ फूड. रशिया में शॉर्टेज ऑफ फूड इसलिए हो रहा था क्योंकि वॉट एवर फूड दे आर प्रोड्यूसिंग दे आर सप्लाइंग टू द वॉर फ्रंट. ओके, सो दिस वॉज द सीरियस इश्यूज. बिकॉज ऑफ दिस सीरियस इश्यूज यहाँ पर एक रेवोल्यूशन होता है. आज हम पढ़ेंगे उस रेवोल्यूशन के बारे में. उसे कहा जाता है मार्च रेवोल्यूशन. बोर हो रहे बच्चों, बस कर दूँ, पढ़ाऊँ? आज मार्च रेवोल्यूशन पढ़ लीजिए. ओके, नाउ अभी फन टाइम में एक टंग ट्विस्टर बोलूँगी. रिपीट विथ मी. बोलते छोटा नहीं बड़ा बोलती हूँ बच्चों. ओके, चलो बोलो मेरे साथ. वेदर वेदर वेदर, इट विल बी अ वेदर, whatever be the weather, whatever be the weather, whether it is hot or whether it is cold, it will be a weather, whatever be the weather, whatever be the weather, whether you like it or not. समझ में आया? रिपीट करो मेरे साथ. After fun time, now study time. Hope you all are understanding about the revolution. Now children, March revolution. तो बच्चों यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड है, बहुत सारे लोग मारे गए और यहाँ की प्रजा त्राही त्राही कर रही है. कोई भी अपने राजा से खुश नहीं है. ओके, जब प्रजा अपने राजा से खुश नहीं होती है तो बगावत करती है, रिवोल्ट करती है. हियर ऑल्सो यहाँ पर एक रिवोल्ट हुआ, रेवोल्यूशन हुआ. ओके, ऑन March 8, 1917, nearly 10,000 women of the capital St. Petersburg took out a procession और इनका स्लोगन था पीस एंड ब्रेड. पीस एंड ब्रेड. क्या स्लोगन था बच्चों? पीस एंड ब्रेड. नाउ वर्कर्स ऑल्सो ज्वाइन देम, यानी इन वुमेन को वर्कर्स ने ज्वाइन किया. नाउ बच्चों, अब निकोलस II बहुत अपसेट हो गए तो इन्होंने अपने गुस्से में अपने आर्मी को कहा कि टू सप्रेस द डेमोन्स्ट्रेटर, इन्होंने उनको यानी फायर करने तक के लिए कह दिया. तो यहाँ की आर्मी इंस्टेड ऑफ फायरिंग ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर दे ऑल्सो ज्वाइन द प्रोसेशन. ओके, अब आ गया बच्चों समझ में. सो जब राजा यहाँ when the king was not in a position to control the situation बच्चों, he abdicate the throne. वो अपना थ्रोन यानी राजगद्दी को छोड़कर चला जाता है. ओके, जब राजा वहाँ से चला जाता है तब रशियन अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट. सो लाइक दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड अबाउट मार्च रेवोल्यूशन. बच्चों ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत बड़ी है. अभी इसके बाद है अक्टूबर रेवोल्यूशन. फिर हमको इसके पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है, लेनिन के बारे में पढ़ना है, स्टेलिन के बारे में पढ़ना है. दैट वी विल डू. हमें ये भी पढ़ना है कि रशिया का इम्पैक्ट दूसरे देशों पे कैसा रहा. ओके, बोर हो रहे हो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम ये चैप्टर. ओके, तब तक रिकैप करिए. आज को मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप रशिया के बारे में क्या समझे, मार्च रेवोल्यूशन के बारे में क्या समझे, आपको अपने क्लास वर्क में नोट डाउन करना है. ओके, और असाइनमेंट में सबमिट करिए. ओके, नीट हैंड राइटिंग से लिखिए, स्पेलिंग से लर्न करिए और पेज नंबर 170, पेज नंबर 169, 168 पर इंफॉर्मेशन है, पढ़िए. बच्चों, अभी आप लोग बहुत छोटे हो. ओके, आप सबको एक ज़िम्मेदार सिटीज़न बनना है. हमारे देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है वो निभाना है. सो try to be a good and a kind human being. Have a nice day. Thank you.